सवाल वो लेटर में क्या था आपने उसका सवाल नहीं किया फॉर्मूला था? बताया नहीं क्या था सर ये सवाल नहीं किया था आपने? होता सर एक भी सवाल नहीं आपने बस सेल पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखा है फिर ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू एसओपी ऑफ एनोड प्लस एसआरपी ऑफ कैथोड भाई आप चले गए होंगे फिर कहीं, पता नहीं कहाँ। बाकी लोगों ने किया है ना ये सवाल? ये सुनो गाइस, टेल मी। अरे भाई कोई तो बोल दो मेरे हक में। जेबा, ये यही बता, हर्षा, सोहा, नोहा, नुहा, Sir, मरियम। we did one question. दिस क्वेश्चन वी डिड और नॉट, ये बताइए आप। ये सवाल हमने So किया। your screen isn't visible. माई स्क्रीन इज इट्स नॉट विजिबल? यस सर ये क्यों हो रहा है भाई? मेरे हिसाब से तो विजिबल होना चाहिए। एक, ओ आई एम नॉट दी होस्ट राइट नाउ ना, तो आप नहीं देख सकते हैं। गिव मी अ सेकंड। I will ask the Learnivio team to make me host. Please make me. Ooh. Arrange the following. Arrange the following elements in oxidizing power. ये वाला सब ये किया है कि नहीं हमने? हाँ ये क्या था सर ये क्या Yes, था sir. किया है ना अभी तो। ऐसा मतलब डरा नहीं आता है। 13 सवाल दे रहे हैं, ठीक है? प्लीज राइट द क्वेश्चन विथ मी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल लिखिएगा। गिवन E naught Cr3 positive to Cr is equal to minus 0.74 volts, and E naught of Fe2 positive to Fe is equal to minus 0.44 volts. You have to determine the anode, मतलब Cr और आयरन में कौन सा एनोड होगा? एनोड, कैथोड, represent T cell, and determine E naught cell. Somebody join now.
Anna, you have joined right now. Anna, you just write the question and try to do this. You can use your notebook, all of you guys. Okay. Let me know once you're done. Hello, Assalamualaikum Siddiqa. Why are you late? Assalamualaikum, sir. The Salam. message is to my mother's phone and I wasn't aware about today's class. You have not got any answers till now. Can you guys, we'll give you one more minute. Just send me whatever you have done till now. अगर आप लोगों ने रिवाइज करके नहीं आया ना, then it will be very difficult to hold this class.
Send me whatever you have done till now. Yes, of course. Sure. And what is going to be? Fine. Fine. I did not write. I did not tell you to write the reaction here. I hope you can see in the question. I did not ask you to write the reaction at a node of the. I wanted you to write the determine the anode like chromium or iron, which will be the anode. I will tell you guys. We did this the previous class, by the way. ध्यान से देखिए जरा. So we have the E naughts, right? We have the standard reduction potential. Which is having higher standard reduction potential? Tell me, guys. Chromium का ज्यादा है या फिर Fe का ज्यादा है? Which value is greater? Minus 0.74 is more or minus 0.44 is more? Which is higher value? Which is greater value? Minus 0.74 or minus 0.44? कौन सा ज्यादा है? minus 0.44. Minus 0.44 is higher, therefore Fe will be cathode, है ना? जिसका SRP ज्यादा वही क्या होता है? Cathode, right? So obviously chromium is going to be anode. तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? Anode में you will be having Cr to Cr3 positive, right? And in cathode you will be having Fe2 positive to Fe. This will be your anode, this will be your cathode. Now I will just represent this. So anode को represent करने के लिए Cr, Cr3 positive with the salt bridge, Fe2 positive and Fe. ठीक है? Now I need to calculate the E naught cell. In order to calculate the E naught cell, what I will do, it will be equal to E naught of cathode minus E naught of anode. Whatever has been given to you. What is the E naught for cathode? So cathode is Fe. We have minus 0.44 minus 0.44 minus anode is minus 0.74. Whatever it will be, it will be in terms of volts. अब यहाँ पे अगर देखें हम तो it will be minus ये 44 लिख दिया हमने. My bad. 0.44 minus में, so this will be minus 0.44. Minus will become plus 0.74 in volts. This will be equal to what? Plus 3, 0.3, no? Plus 0.3. So this is the answer. Please copy this down, guys. I can understand you have not studied. Those who did not send me anything, na, I can see that you have not revised this particular thing in the from the previous class, है ना? अब ये चीज आप पता नहीं क्यों कर रहे हैं. I guess you guys are having tests in your school, but that doesn't matter, okay? वो मैटर नहीं करने वाला आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन. Copy this down quickly.
Guys, if you are going to be like this ना कि आप अगर आंसर नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होती है पढ़ाने में, ठीक है? Please try to revise whatever we have done in the previous lecture. Copy this down, raise your hand once you're done. आपको खुद समझने में मुश्किल होगी, ठीक है? Whenever you're revising, please keep a pen and paper with you, and you have to redo all the problems whatever was done in the class, because in the class usually what happens is I am doing the problem. Yeah? When you are doing self study, in that time you have to do the problems, and especially you need to revise before the Monday class, because Monday के बाद तो Wednesday हो जाती है class, right? So you just have a single day of gap, but after Wednesday, Thursday there is no class, Friday there is no class, Saturday there is no class, Sunday there is no class. So there is a gap of 4 days, and in those 4 days everything will evaporate out from your mind, whatever you have studied in the Wednesday's class, ठीक है? तो प्लीज उसको रिवाइज किया कीजिए. Waiting for Khadija and Harsha. Just waiting for Khadija now. Favorite. Anyone else? Zeba, waiting for you. Zeba, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्लास के बीच में. अब प्लीज लुक इनटू योर इंटरनेट कनेक्शन. ओके Zeba? Yes, sir. ठीक है. All of you can lower your hand, guys. Zeba, just waiting for you. आप अभी ज्वाइन किया है क्या आपने? बिल्कुल. Zeba, tell me. Zeba done? ठीक है. Yes, sir. चलिए I आप. completed. ठीक है. See you guys. That's it. Please leave your pen aside. You need to understand this particular concept. ठीक है. Please lower your hand, lower them, and keep your pen aside and see in the screen. Let us suppose we are having a Fe cell, Fe half cell. Okay? So we are going from Fe to Fe2 positive. Now, until and unless I am going to connect this particular cell with another cell, I will not get the voltage. In order to get the voltage, I need to have 2 cells. Then only I am going to get the cell voltage. Like a single cell will not give any voltage, right? Does that make sense? एक आपके पास हमने बताया एक बैटरी है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल है. आई होप यू नो दैट इन बैटरी यू हैव 2 टर्मिनल्स, राइट? द बैटरी इज समथिंग लाइक दिस, और इसमें एक ऐसे करके एक छोटा सा ये बना रहता है. तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. तो अ बैटरी, in order to get some voltage, you need to have a positive as well as a negative terminal. And if I am only having positive terminal, then obviously I am not going to get any voltage and it is not going to act as a battery. Does that make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Right? So, for example, if I take the Fe2 plus and no, not Fe2 plus here, but rather what cell we took? We made a cell of chromium here, right? So chromium to chromium 3 positive, and we had here Fe2 positive to Fe, right? And this will be giving us some voltage, and that voltage we calculated, it was, I mean, let us suppose it is giving 0.3 volts, है ना? जो आ रहा है. This is what is going to happen in the practical cells. 0.3 volts. We are getting 0.3 volts, but how would we know how much electricity is contributed by the chromium and how much electricity is contributed by the iron? You will say that we can get it from the E0 cell. That is true. We can get from E0 cell, but try to imagine when we were doing these experiments for the first time. When we were doing this experiment for the first time, we did not know the SRP of anything, right? We cannot know it until we have done the experiments, right? So we are doing the first experiment. In the first experiment, we have taken these 2 electrodes, and we get this particular value in the voltmeter. Now, obviously, there is something happening in the chromium compartment, there's something happening in the iron compartment, and the net effect of both of them is 0.3 volts. But we don't know exactly how much electricity is given by chromium or how much electricity is taken by iron or the vice versa, until unless we try to have one kind of reference. What does that mean? We will choose a cell. ध्यान सुनिएगा क्या कह रहे हैं हम. We will choose a cell and say, that this cell has voltage 0. The SRP of this cell, we will consider it to be 0. It will not be 0, because why we are considering it 0? Because we have to, in order to get, so this will be called as reference.
We will call this as the reference. Okay, we will call this as reference. So for example, let us suppose I have here in this compartment, let us suppose I have K and K positive. ठीक है, अभी आपने K and K positive रखा और यहाँ पे आपने क्या रखा, रेफरेंस. ठीक, रेफरेंस. Now we connect both of these to voltmeter, and this voltmeter, it is telling us that the voltage that we are getting, it is 0.5 volts. Now we have considered reference electrode to be 0 volts. That means all the electricity is coming from the potassium compartment. Does that make sense? Yes or no? Please tell me. Yes. Yes, sir. I know. So this is the concept of reference electrode, and this is how we are going to determine the electrode potential or the potential of a single electrode. ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड. So reference electrode, you write the first point, the potential of single electrode cannot be determined but हम PD लिख रहे हैं. PD का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two electrodes can be accurately measured using a reference electrode. ठीक है, नेक्स्ट में लिखिएगा, an electrode is chosen as a reference with respect to which all other electrodes are valued. इसमें लिखिएगा SRP, standard reduction potential of reference electrode is assumed to be 0. हम लोग इसको 0 लेके चलते हैं. ठीक है, तो if the SRP is reference electrode is 0, तो उसका SOP भी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 ही होगा ना. SRP नेगेटिव ऑफ SOP होता है, 0 का नेगेटिव तो 0 ही होगा. Copy this down. सर सेकंड वाले में W और T क्या रखा सर? With respect to. विद रिस्पेक्ट. सेकंड में ही है अभी तक, जल्दी लिखिए. नहीं सर, हो गया. अच्छा, हो गया. ठीक है, so we have to learn about one reference electrode. I think just let me know. I hope यहाँ तक सबका हो गया होगा. If you are not done, please let me know. I will scroll above. ठीक है, one reference electrode that we need to learn is the standard hydrogen
electrode. That is also sometimes referred as SHE, SHE, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. सबसे पहले देख लेते हैं ये दिखता कैसा है. ठीक है, पिक्चर कुछ उसका ऐसा है. ठीक है, I will explain all of these things. अभी मत लिखिएगा प्लीज. ठीक है, कुछ मत लिखिए प्लीज. So what we are having here, so obviously when we are having standard hydrogen electrode, it will be having hydrogen gas. Now hydrogen gas cannot really react, so we need to have this in a glass chamber. Then there will be a nickel type of wire. ठीक है, ये glass का होगा. So it will be glass. And here we are having platinum black लिखा हुआ है, तो platinum will be there, and that platinum is going to provide surface for the reaction to happen, as we have discussed this in the previous lectures also. So platinum electrode is there, and we are having a concentration solution of H3O plus, which is 1 molar. 1 molar concentration होना चाहिए किसका, solution का. 1 molar of what? 1 molar H plus solution, and the gas should be having a pressure of 1 atm. So here there are two things which can happen. Number one, ध्यान से देखिएगा, when SHE is anode, अगर ये anode की तरह काम करेगा, ठीक है, if you are going to put it in anode, then we will say H2 will give you the reaction. This will occur 2H plus 2 electron. This reaction is going to occur, and we will say that E naught of H2 say H plus will be equal to 0. Similarly, if, or rather I should write, when she is cathode, when standard hydrogen electrode is acting as a cathode, then in this case we will say that 2H plus is going to give you, rather I should add 2 electrons, plus 2 electron is going to give you H2 gas. E naught of even this reaction, E naught of H plus 2H2 will also be equal to 0 volts. Now I will also show the representation. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन यहीं पे देख लीजिए जरा, रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे करते हैं. इफ इट इज एट एनोड ना, एनोड के लिए प्लैटिनम में H2 आ रहा है एंड देन H प्लस, हाउ वी रिप्रेजेंटेड. ठीक है, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज वगैरह जो कुछ करना है वो कर सकते हैं. हियर व्हाट इज हैपनिंग, इट इज गोइंग फ्रॉम H प्लस टू H2, ऐसे बनाना है इसको, H प्लस टू H2 एंड H2 कहाँ पे, प्लैटिनम. ठीक है, कॉपी दिस डाउन, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट. There are a few points that I'm going to write, then we will understand a few things regarding this particular she or which or chीज है. सर मैं डायग्राम भी I ड्रॉ will wait for a few. करूंगा. हाँ, डायग्राम ड्रॉ कीजिए आराम से जी, डायग्राम ऐसे आ नहीं आता है एग्जाम वगैरह में, लेकिन आपको याद हो जाएगा. डायग्राम ड्रॉ कीजिए ना, कि 1 ATM होता है, H प्लस होता है. ठीक है, so rather than spending time in remembering what are the values for 1 ATM और ये सारी चीजें ड्रॉ कर लीजिए तो फिर याद हो जाएगी. अच्छा, इन दिस क्लास इज देयर एनीवन जिसको हिंदी नहीं आती है? कोई है क्या ऐसा, कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी? सिद्धिका, यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल? I do, sir. A little bit. बारात पता है, बारात क्या होती है, बारात पता है? No, sir. नहीं मालूम. बारात बारात नहीं पता है आपको? वाह, No, sir. बारात नहीं पता है, क्या बात कर. Sir, I took Urdu. बिट्टू, उर्दू तो उर्दू ही तो है. बारात बारात उर्दू नहीं है क्या? I speak that in बारात English too. बारात में इंग्लिश कुछ नहीं होता है, क्योंकि जहाँ लाइक वेस्टर्न कंट्रीज दे डोंट हैव बारात. इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में यहाँ बारात होता Okay. है. बारात, बारात जाना, बारात का आना नहीं. No. कौन समझाएगा इनको बारात? Who will explain her बारात? Even अन्ना, I do you know don't. what? Even you don't know. खदीजा को भी नहीं पता बारात. वाह. नहीं. अन्ना, do you know what is बारात? No, sir.
ये कैसे बच्चे, कहाँ रहते हैं आप लोग? गुफा में रहते हैं क्या? गुफा पता है गुफा? व्हाट इज गुफा? What is? गुफा गुफा। Tufa. नहीं, जी जी से नहीं, रैन से, लेकिन तो गुफा। गुफा बोलिए, गुफा बोलिए। हिंदी में अगर हम No, sir. लिखेंगे तो इसको ऐसे। हाँ, यस अन्ना, यू सेइंग समथिंग? I asked if it's a cave. हाँ हाँ, इट इज अ केव, करेक्ट। गुफा मतलब केव होता है। तो आप लोग केव में रहते हैं क्या? बारात नहीं पता? यही आपको पता है बारात? जी सर। कब लेके जा रहे हैं? शादी के वक्त जाता सो। अभी? शादी के वक्त जाता सो, बारात वो बारात। हाँ, तो आप कब लेके जा रहे हैं? मैं अभी नहीं है सर, 12th पास हो रहते। 12th पास? ओ माय गॉड, क्या जल्दी है भाई इसको 12th पास होने के बाद। नहीं, अब नहीं समझ तो वो नहीं, नहीं। नहीं नहीं, समझ गए, समझ गए। दिल के अरमा आंसुओं में निकल गए है ना, लेकिन क्लास में निकल गया आपके दिल का अरमा। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बारात। जी, सिद्दीका, शादी में लेके जाते हैं ना, दूल्हे की बारात जाती है। अब पता चला? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलते हैं उसको? बारात ही तो बोलते हैं ना। व्हाट डू वी से? बारात नहीं बोलते उसको, खदीजा? Yes, sir. Yeah. क्या अभी यहाँ हो रहा है बारात? वो आप लोग, लगता है आप लोगों को तो बारात वारात जाने का मौका ही नहीं मिलता होगा क्या? उधर गल्फ में रह रहे हैं, ना बारात ना शादी का खाना, कुछ भी नहीं। ले दे के लूलू मॉल है आपके पास, वहीं पे जाना वहीं से आना, है ना? और तो कुछ है नहीं, क्या है उधर? कोई गया है यहाँ पे बारात किसी का? No, sir. I've never gone नहीं to है, one. you have never been. Okay, anyone else? सर India यहाँ में? और इंडिया, Sir. यहाँ अरे या कहीं इंडिया भी में? भाई, कहीं भी इंडिया में ये जाते हैं, बारात। I इंडिया went. में जाते हैं। अच्छा, India में। अच्छा, इंडिया में क्या? जिब आपको पता था ना बारात क्या होती है? हाँ, I know what हाँ, Bharat is. ठीक है। नहीं मतलब उसी लेवल का हिंदी चाहिए आपको, ठीक है? बारात आ रहा है एकदम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बारात आ रहा है, ठीक है ना? तो पता चलेगा। चलिए, आई होप यू हैव रिटन टिल हियर, यस और नो? ऑल ऑफ यू डन? Yes, sir. यस सर। चलिए, ठीक, ध्यान दीजिए आप। Note a line that we are going to write once again, that is, platinum is used as surface for the reaction to occur. Platinum is only used as a surface for the reaction Rx है ना? ऐसे प्लैटिनम क्या होता है? इट इज इनर्ट, प्लैटिनम कोई रिएक्शन नहीं करता, ठीक है? अच्छा, क्या करते हैं इसमें? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, नो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का, क्या करते हैं? ध्यान से लिखिएगा, ठीक है? टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन द standard potential of any electrode it is coupled with standard hydrogen electrode, ठीक है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टार्ट करिए, एंड द पोटेंशियल क्या लिख दिया हमने? एंड द पोटेंशियल measured by बाई सेल नहीं होगा ना, बाई द वोल्ट मीटर, by the voltmeter is taken as the standard potential, taken as the standard potential, ठीक है? तो ये पोटेंशियल क्यों लिख देते हैं हम? पोटेंशियल, जी। सो बेसिकली स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने यहाँ लिखा है, आई हैव नॉट taken specifically standard reduction potential या oxidation potential, because some metals they will be
having more tendency to lose electron. They will be having, ध्यान सुनिएगा, more tendency to lose electron than hydrogen. That is why they will act as anode. तो जब उनको एनोड में डालेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता चलेगा. There will be certain metals which will be having lesser tendency to lose electron than hydrogen. ठीक है, तो क्या पता चलेगा उससे? उससे हम लोगों को पता चलेगा उनका रिडक्शन पोटेंशियल. They will be acting as a cathode, and then because they have tendency to lose electron lesser than that of hydrogen, है ना. तो ये अगर थोड़ा सा याद हो आपको ना, 10th स्टैंडर्ड में आपने एक चीज पढ़ी थी, रिएक्टिविटी सीरीज. कुछ याद आ रहा है जैसे? नो, Yes, sir. रिएक्टिविटी सीरीज है ना, उसी से रिलेटेड है. तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे. लाइक व्हाट वी डिड, वी हैड हाइड्रोजन एज द जीरो. So every element which is more reactive than hydrogen. Now when we talk about metal which is more reactive than hydrogen, then metal has tendency to lose electron. Metal की reactivity की बात होगी ना. Whenever we are going to talk about the reactivity of metal, we are actually talking about the tendency to lose electron. If I say metal A is more reactive, that means it has more tendency to lose electron. So we have hydrogen at zero. Above it, we will be having all the elements, rather we should say metals, which has tendency to lose electron more than hydrogen. And below hydrogen, will be having certain metals which have tendency to lose electron, but that tendency is lesser than that of hydrogen. And then we make a complete list of elements. That list of elements, it is known as electrochemical series. क्या बोलते हैं उसको फिर? Electrochemical series. ठीक है, electrochemical series. Right here, I hope you have written the note, the 2 points. Write with me for electrochemical series. If the value, ये definition वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन नोट्स पे रहना चाहिए आपके. ठीक है, if the value of different electrode potentials are arranged in a series of increasing or decreasing order, then the series is called electrochemical series. Series is called electrochemical series. So the electrochemical series that I am going to write यहाँ पे, I will write electrochemical series E dot S है ना, short. Electrochemical series in increasing order of SRP, standard reduction potential. ठीक है, standard reduction potential. यहाँ तक लिखिएगा. उसके बाद I will write the series. Then you will not write the series with me. You will first of all, we will write the series, and then we are going to memorize the series, and then you are going to write. Okay. Soha, are you in the class? Yes, sir. Yes. चलिए. Now we are going to write the electrochemical series. ठीक है, electrochemical series. सबसे पहले आएंगे आपके पास lithium. You don't have to write. Please don't write. ठीक है ना? Lithium. Then you will have potassium. I need some space. Lithium, potassium. Then you will have barium, calcium, sodium, स्पेस कम पड़ जाएगा मेरे को, तो चलिए कर ठीक है. स्ट्रॉन्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम. एक काम कीजिए, ऐसे कर सकते हैं, ये ना थोड़ा काम आएगा. कैल्शियम और Na को साथ में हम लिखते हैं एक जगह. ठीक है, बट कैल्शियम उसके बाद Na है. फाइन, calcium and then Na. It is going to be helpful in the memorization also. That is why I have written Ca and Na together. थोड़ा सा साइड कर देते हैं because some more space there. And then we will be having magnesium. Then we will be having the strontium, and then उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके पास aluminium.
एल्यूमिनियम की जगह एल्यूमिनियम, ठीक है। नाउ आफ्टर एल्यूमिनियम आई एम गोइंग टू राइट फ्रॉम हियर, ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट हियर व्हाट इज देयर, वी आर हैविंग मैग्नीज, ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, Mn मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज के बाद आएगा जिंक, जिंक के बाद आएगा क्रोमियम, उसके बाद आयरन, देन वी विल हैव Cd, तो उसको ऐसे ही लिखना, ठीक है, साथ में अभी समझिएगा, सब समझ में आएगा। नाउ आफ्टर कैडमियम वी आर गोइंग टू हैव कोबाल्ट, देन वी आर गोइंग टू हैव निकल, देन वी आर गोइंग टू हैव व्हाट इज Sn, व्हाट इज Sn, व्हाट इज Sn guys, 10, then we are going to have lead, that is Pv, उसके बाद आएगा हाइड्रोजन, then we will be having छापा, CHAPA, छापा, छापा मतलब क्या, कॉपर, मरकरी, पहले सिल्वर, फिर प्लैटिनम, जो सबसे ज्यादा महंगा, गोल्ड सबसे आखिर, है ना, ठीक है। अब याद कैसे करना, ध्यान से सुनिएगा। लेके बारात काना, काना का मतलब होता है जिसकी एक आंख, ठीक है, काना दज्जाल कुछ लोगों ने सुना, राइट, वन आइड एंटी क्राइस्ट, राइट, यू मस्ट हैव हर्ड दीस वर्ड्स। तो लेके बारात मतलब दज्जाल की बारात नहीं आ रही है, मतलब लोग भी हो सकते हैं जिनकी एक आंख होती है ना, तो उनका कान, मतलब उनको काना बोलते हैं। तो लेके बारात काना मजे से आया, कैन यू रिपीट दैट विथ मी, हाँ गाइस, लेके बोलो, चलो 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 बोलो, कैन यू रिपीट, हम पूछ क्यों रहे हैं, बच्चे, टर्न द माइक ऑन, रिपीट विथ, पूछ रहे हैं हम इनसे, टर्न द माइक ऑन, रिपीट विथ मी, लेके बारात लेके बारात लेके बारात काना मजे से आया, खाना गाना मजे से आया, मजे से आया, लेके बारात, लेके बारात लेके बारात, ये भाई वेट से, खदीजा, मरियम, नोहा एंड हर्षा, व्हाई योर माइक्स आर नॉट ऑन, अन्ना योर्स टू, कीप योर माइक ऑन गाइस, खदीजा, मरियम, हर्षा, जी, लेके बारात लेके बारात ताना मजे से आया, खाना मजे से आया, once again, लेके बारात काना मजे से आया, लेके बारात खाना मजे से आया। मजे से आया। बहुत सारी, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन योर कल्चर, मतलब आपके जो गांव है, शहर, जहाँ, but in our cities, in our like town areas, when the barat is generally, it comes at night, then the nikah and everything, it happens, then the barat leaves in the morning. So morning, that means you have to also serve them breakfast, and obviously they have to get fresh and everything, right? So in order to get fresh, they have to also do brush and stuff. But मेरे तो गांव है, तो गांव में लोग मंजन करते हैं, मंजन पता है आपको, मंजन, have you heard of this जी word, सर, मंजन, जी सर, मंजन पता है, नहीं पता है, मुझे पता है सर। ठीक है, तो पेरेंट्स से पूछिए मंजन क्या होता है, ठीक है, ओके, कुछ कहिए तो कोई, मंजे मंजन, 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 मंजन करना क्या होता है, ऐसा पूछ के, मंजन करना, मंजन, हर्षा, डू यू नो व्हाट इज मंजन, यस यू नो इट, अच्छा, यू डोंट, जी मंजन पता चला, सिद्दीका आई, सिद्दीका पूछ के नहीं आई, हाँ यही knows what is manjan, now anyone else who knows manjan other than ये क्या, Manjan, sir, as in the powder. yeah, that That powder, You okay. use it to brush. हाँ, we used to brush teeth with that powder, the one powder that is very famous, the Dabur का मंजन आता है, Colgate it is kind of white, right, Dabur is generally reddish, I think you have one for Patanjali also, so these manjans are very famous, so you have powder, then you take that powder in your like palm hand, and then वो ब्रश से ऐसे से उसको टैप करते हैं, then you do the brush, ठीक है, that is मंजन, बेसिकली मंजन एक तो वो भी होता है, एंड देन मिसवाक, और यू कैन से इन द विलेजेस ना, वी यूज नीम का मंजन, we have whatever you use as miswak, you can have same stick of neem, and that neem is used as a brush, ठीक है, तो मेरा गांव है, तो गांव में तो मंजन करेंगे लोग, ब्रश नहीं करते, ठीक है, एंड दिस इज रियली ट्रू, if you go in the morning for a walk,
around many of the streets and lanes you will see many people doing that neem का मंजन in here in my village. ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, मंजन कर, उसके बाद मंजन करके क्या करेंगे, फेंक देंगे उसको, फिर रखे रहेंगे। तो लेके बारात काना मजे से आया, देन सुबह हुई, सुबह क्या करना है आपको, सुबह उठ के करना है आपको मंजन कर फेंक दे। आफ्टर डूइंग द मंजन यू हैव टू फ्रे, यू हैव टू थ्रो इट, फेंक दे, फेंक दे, थ्रो इट, फेंक दे। नहीं दिख रहा क्या, मंजन कर फेंक दे। मंजन कर फेंक दे। ओके। Wow, type and two others guys. Annapurna, Lokha, Siddhika तो बोली, Soha, Harsha and Zeba. फेंक दे, मंजन कर फेंक दे। मंजन कर Guys, can you please turn your mic on? माइक ऑन कीजिए, हम कहानी बाद में बता देंगे, आप लोग पहले बोलो। लेके बारात, लेके जल्दी जल्दी, बारात लेके बारात काना मजे से आया, खाना मजे खाना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे, मंजन मंजन कर फेंक दे, फेंक दे, मंजन कर फेंक दे, मंजन कर फेंक दे। फेंक दे। उसके बाद है, ध्यान सुनिएगा, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, कोई निगाहें कोई सुंदरी, निगाहें सुंदरी सुंदरी प्यार भरी, प्यार भरी। प्यार करते, ठीक है। एक एक करके बोलो, कोई कोई निगाहें निगाह सुंदरी सुंदरी प्यार भरी, प्यार, ऑब्वियसली देखिए, अब ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ तो हो गया, फिर उसके बाद विदाई होगी ना, रुखसती होगी, राइट। जी सर। सो व्हेन द ब्राइड विल गो विद द ग्रूम, वो अब बेचारे जो दुल्हा है, दुल्हा का तो एक ही आंख है, तो जब वो दुल्हन को देखेगा, द फर्स्ट थिंग ही विल ऑब्जर्व इज हर आईज। तो क्या बोले, तो बोलेगा कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। मेक सेंस, ऐसा नो, कोई नहीं, इसमें क्या मेक सेंस, नहीं मेक सेंस करा, कुछ मत मेक सेंस करो, रट लो भाई, क्या मेक सेंस इसमें, सर कोई निगाहें कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, प्यार भरी, प्यारी प्यारी। प्यारी नहीं है, ओके। अच्छा प्यारी बोलो, पी भी है लेकिन प्यार भरी, फिल्ड विथ लव, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, ठीक है, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। उसके बाद आसान है, हाइड्रोजन का तो होता है जीरो, यह रेफरेंस इलेक्ट्रोड ना, हाइड्रोजन इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये बोलेंगे कहां बारात से कहां पहुंच गए हम लोग, इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री में रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। खाना पीना हुआ नहीं लेकिन बारात में, खैर है, क्या बोलूं, छापा। उसके बाद क्या है, CHAPA, छापा, ठीक है। तो एक बार हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, आप लोग भी प्लीज उसको, जब हम पूरा बोल रहे हैं उस पर एक बार पूरा मतलब ट्राई कीजिएगा। लेके बारात गाना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन जीरो छापा, हाइड्रोजन जीरो छापा। बोलो पूरा, बोलो पूरा, बोलो, लेके बारात, लेके बारात लेके खाना बारात मजे से खाना आया, मजे से मंजन आया, कर फेंक दे, मंजन कोई कर निगाहें सुंदरी सुंदरी प्यार भरी, प्यार भरी, H0 हाइड्रोजन जीरो छापा। छापा। बाकी लोग एक एक करके आप सब समझेंगे, यही ने सुना दिया, सिद्दीका सुनाइए। लेके चलिए, भारत भारत है, भारत नहीं है भाई, बारात, भारत कहाँ लेके लेके जाइएगा, बारात हाँ। लेके भारत खाना मजे से आया, हम्म, मन मंजन, मंजल कर फेंक दे, हम्म, आ, मंजन कोई कर निगाह, फेंक क्या बोलेगा दुल्हन, क्या बोलेगा दुल्हन जब वो सबसे पहली बार देखेगा? कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, कोई निगाहें सुंदरी प्यारी, हाइड्रोजन जीरो प्यार, छापा। हाँ, छापा, ठीक है, चलिए चलेगा, इतना चलेगा। आप माइक ऑफ करके रिपीट करते रहिए, लेकिन ठीक है ना, ओके। यस। सेम गोस फॉर यही आल्सो, है ना। एनीवन एल्स हु इज रेडी, एनीवन एल्स हु इज रेडी, कोई, किसी ने ये हिम्मत नहीं कि यस सर हम बोल देते हैं, ऐसा कोई है? सर मैं नोटबुक में लिख ले रहा हूँ सर ये पूरा। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो, मतलब हम हिंदी में लिख लेते हैं वैसे, आई विल राइट इट डाउन इन हिंदी, बट जिनको हिंदी नहीं आता, वो फिर जो लैंग्वेज आपको सूटेबल है उसमें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। द प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करके आप खुद से लिख लीजिएगा। अन्ना, चलिए स्टार्ट, अन्ना, जल्दी करो भाई, आगे पढ़ना है कि इसी में खत्म कर दें हम, अन्ना। लेके बारात खाना हाँ मजे से आया, मंजन कर हाँ फेंक दे, कोई निगाहे सुंदरी
प्यार भरी हाइड्रोजन जीरो हाइड्रोजन जीरो जीरो छापा। छापा छापा समझ में आया ना? कॉपर का है सी, देन मरकरी एच, सिल्वर ए, प्लैटिनम पी, गोल्ड ए। मेक सेंस? यस सर हाइड्रोजन जीरो छापा। ठीक है, नेक्स्ट इज मरियम। जी मरियम। स्टार्ट कीजिए। Sir, I don't know. व्हाट यू डोंट नो? शुड आई हेल्प इनिशियली? लेके लेके बारात यार क्या लिखा हुआ है? पढ़ तू। गाना। का काना ये बोल रहे थे हम, रिपीट कर लेते हैं। मैं सब छोड़ी थे, आपको बाद में सिखाएंगे। अरे खदीजा बताएंगी, खदीजा। बाद में मरियम, बाद में। खदीजा। लेके बारात खाना मजे से आया। अम, मंजन पर अम, अ, कहाँ है? कुछ मंजन कर फेंक दे। फेंक दे कोई निगाह है सुंदरी प्यार भरे हाइड्रोजन जीरो छापा। करेक्ट, बिल्कुल। सोहा बताएंगे अब। सोहा। लेके बारात खाना मजे से आया। मंजन कर फेंक दे अ, कोई निगाहें सुंदरी। उसके बाद कर सर। उसके बाद कोई निकाय सुंदरी प्यार भरी। नहीं, वो लास्ट की लाइन है। हाइड्रोजन जीरो छापा। ओके, हाइड्रोजन जीरो छाप। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा? कोई निगाह नहीं। मरियम आप समझ में आ रहा है? हिंदी आती है आपको कि नहीं आती है? um, हिंदी नहीं आती है? हाँ ना तो बोलो भाई। no. तो ऐसा हिंदी तो इतनी देर से हम जब पूछ रहे थे हिंदी आती है नहीं आती है। Sir, it's okay. I will learn without that. विदाउट दैट यू विल लर्न। Yeah. ठीक है। प्यार भरी हाइड्रोजन जीरो छापा, तो ऐसे कर लीजिएगा आप लोग, है ना? छापा, दिस इज CHAPA। चलिए कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए। आई एम स्टिल सेइंग इफ यू रिमेंबर इट ना। देखिए अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? लिथियम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम, बेरियम, ऐसे करके हाइड्रोजन में जीरो है। सर हाइड्रोजन की, जी जी जी, ये दीपिका। आप थर्ड लाइन एक बार फिर से पढ़ सकते? कोई थर्ड वाली। निगाहें, यस सर। कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। अच्छा जेबा जेबा जेबा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है जेबा, चलिए। ओके टीचर, थैंक यू। आप आ जाइएगा लेकिन तुरंत पढ़ के। अरे बस फर्ज पढ़ के आइएगा, ठीक है? पहली रकत में पढ़िएगा सूर्य कौशल, दूसरे रकत में पढ़िएगा सूर्य इखलास, ठीक है? व्हाट सर? सिर्फ फर्ज पढ़ के आइएगा। पहली रकत में पढ़िएगा सूर्य कौशल, इन्ना आते ना कल कौशल। सेकंड रकात में आप पढ़ लीजिएगा कुल हुवल्लाहु अहद, और फट चाहिए। ओके सर। क्या? जी जाइए ओके जल्दी सर। जल्दी।
Anyone still writing? Yes, sir. तो बाय द वे ना हम यहाँ पे ऐसे करते हैं बॉक्स में आई एम राइटिंग दिस लेके बारात ताना मुझे से आया और ठीक है. So those who don't know Hindi, they can just memorize this part. लेके बारात, ठीक है, ताना मजे से आया. ठीक है, so I will call this section ना लेके बारात ताना मजे से आया. You can remember this as बारात section. ठीक है, बारात. And this is brushing section. मंजन कर फेंक दे. इसमें क्या करेंगे, मंजन कर, तो ऐसे ही बिल्कुल ना, मंजन कर फेंक दे, फेंक दे. ठीक है, देन वी विल हैव कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी. ठीक है, सो हाइड्रोजन जीरो छापा हो तो एनी लैंग्वेज. ठीक है, सो आई हैव डिवाइडेड हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हाइड्रोजन. आई कैन से वी हैव द वेडिंग सेक्शन. पूरा का पूरा वो सेक्शन क्या है, वेडिंग. एंड आफ्टर दैट हाइड्रोजन के राइट साइड में अगर हम बात करें, दैट इज छापा. ठीक है, इस तरह से हम आई विल बी यूजिंग दीज वर्ड्स. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज वर्ड. ठीक है, एटलीस्ट ड्यूरिंग माय क्लास. हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में क्या है, सारी चीजें, ऑल ऑफ दोस आर वेडिंग एलिमेंट्स. वेडिंग एलिमेंट्स बोलेंगे. और हाइड्रोजन के राइट साइड में जो है, वी विल कॉल देम छापा एलिमेंट्स. ओके, लेफ्ट टू हाइड्रोजन वेडिंग एलिमेंट्स एंड राइट टू हाइड्रोजन वी हैव छापा एलिमेंट्स. The wedding elements, they are divided into three sections. We have the barat elements, we have the brush elements, manjan, then we have the ruksati elements or the vidai elements. ठीक है, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, जो कि रुखसती टाइम. ठीक है, तो आई विल बी यूजिंग दीज वर्ड्स ताकि आप लोग को थोड़ा सा ध्यान है. इसमें मैंने एक बार बता दिया आपको. ठीक है, आई विल बी यूजिंग दीज वर्ड्स, वेडिंग एलिमेंट्स, बारात एलिमेंट्स, ब्रशिंग एलिमेंट्स, है ना, एंड रुखसती एलिमेंट्स, देन छापा एलिमेंट्स. ठीक है, आई होप आप लोग अभी लिख ही रहे होंगे. थोड़ा सा इसमें एक और हम आपको इन्फॉर्मेशन बस दे देते हैं, बट आई ये शायद आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ ही गया हो कि एवरीथिंग ऑन दी नंबर लाइन की तरह से याद रखिएगा. हाइड्रोजन तो जीरो है. ऑन द राइट साइड ऑफ हाइड्रोजन ऑल ऑफ दिस विल बी हैविंग एसआरपी विच इज पॉजिटिव. यहाँ पे जीरो है, H is equal to 0, and here we are having the chapa elements which are having SRP which is positive, and here we are having the wedding elements जिनकी SRP क्या है, नेगेटिव. ठीक है, दैट मीन्स द वेडिंग एलिमेंट्स दे हैव हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन नहीं करना चाहते. छापा एलिमेंट्स को रिडक्शन करना है, दैट मीन्स दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, so anything that is having negative SRP, that means they have a tendency to lose electron rather than gaining electron with respect to hydrogen. All of you understood this part? Yes or no? Positive, negative, wedding, chapa. एक बार yes no बोल दीजिए. All Yes, of you sir. guys, yes or no? Keep copying. Let me know once we're done. The negative means they're more reactive. Negative का मतलब क्या है? That they will not get reduced. Make sense, Harsha? That one, that part. SRP negative, that means it will be not reduced. Correct? है ना? एक एक करके ना धीरे समझा रहे हैं. ये समझ में आया क्या नहीं आपको? टेल मी. If the SRP is negative, that means they have lesser tendency to get reduced. Correct? Yes. So that means they have lesser tendency to gain electron. Make sense? Yes. That means they have more tendency to lose electron. जैसे कि अगर हम SRP नेगेटिव बोल रहे हैं, इसका SOP तो पॉजिटिव होगा ना. Yes. If SOP is positive, that means they can lose electron. If they can lose electron, that means they are more gain. Okay. वो बिल्कुल, this thing should be very clear.
this is a what I don't call it a problem, but this is how chemistry is there. I mean, whether you call it a problem or not. We talk about reactivity of metals, but when we say reactivity of metals, we are talking about losing of electron. But we use SRP, reduction potential, which is actually talking in terms of gain of electron. So हम लोग ये कह रहे हैं कि the wedding elements, they have lesser tendency to gain electron than hydrogen. That means more tendency to lose electron. ठीक है? So they are more reactive. They are more reactive. Hydrogen से पहले जो भी आ रहा ना, that is more reactive, and hydrogen के बाद जो आ रहा है, that is less reactive with respect to metals. Metals have tendency to lose electron. Wedding elements have tendency to lose electron. Chapa elements, they have tendency to gain electron. Then everyone, anyone still writing? Please let me know. Anyone still writing? नहीं, कोई नहीं लिख रहा है क्या? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देवा, you are writing? Yes, sir. पढ़ के आ गया आप नमाज? Yes, sir. कौसर से भी कोई छोटी सूरत होती है क्या? तो भाई सब बड़ा जल्दी पढ़ के आ गया. कीजिए आराम से, कीजिए आराम से. नहीं, शायद टाइम हो गया होगा, 3 बजे तक टाइम. हाँ ठीक है. ज़ेबा, प्लीज राइट एंड लेट मी नो वंस यू आर डन. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ना बोर्ड से में उतने सवाल हमने नहीं देखे हैं अभी तक, क्योंकि बोर्ड से बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से. Done, sir. बट जेई मेंस में, नीट में काफी सवाल आते हैं. ठीक है एवरीवन का. चलिए, आफ्टर दिस यू राइट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखिएगा. एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. जो नंबर 1 एप्लीकेशन है, प्लीज राइट oxidizing and reducing power. Determination of oxidizing and reducing power, then we have to relate it. Oxidizing and reducing power. ठीक है, oxidizing and reducing power में we know that oxidizing power हम लोगों ने पहले देखा था. oxidizing power is what it is directly proportional to standard reduction potential, है ना? Oxidizing power directly proportional to standard reduction potential. जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो क्या करेगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा. इट विल ऑक्सीडाइज. ठीक है, दैट मींस आई कैन से metal on lower side have higher oxidizing power. ठीक है. reducing power क्या होता है? reducing power metal on lower side, समझ में आ रहा है ना? if I have 2 metals, जैसे कि अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए इधर. जिंक और क्रोमियम में किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है? तो जो नीचे है उसकी ज्यादा है. बात समझ में आ रही है? यस और नो? Yes. लोअर साइड समझ में आया? ठीक Yes, है. sir. जी सर. उसके बाद क्या लिखना है हम लोग को? रिड्यूसिंग पावर. मेटल्स की जनरली ना रिड्यूसिंग पावर ही होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जनरली मेटल्स का नहीं होता. रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? 1/SR. ये हम लोगों ने पहले लिख दिया. तो क्या कर सकते हैं? जहाँ पे एसआरपी कम है वो रिड्यूस करेगा. तो एसआरपी कम किधर है? लिथियम की तरफ ना, नेगेटिव साइड. तो मेटल ऑन अपर साइड have higher reducing power. Make sense? ठीक है. सेकेंड एप्लीकेशन है डिस्प्लेसिंग पावर.
डिस्प्लेसिंग पावर, ये सारी चीजें वही 10th टाइप की है, ठीक है ना, डिस्प्लेसिंग, लेकिन फिर भी यार किसी ने अगर 10th में केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसिंग पावर, सो इफ आई हैव अ मेटल और दूसरा हमारे पास सॉल्ट है, तो कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में विच विल डिस्प्लेस, तो सिंपली लिखिएगा यहाँ पे डिस्प्लेसिंग पावर जो होगा डीपी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस आर। बेसिकली जो डिस्प्लेस कौन करेगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन लूज करना आसानी से, जिसको इलेक्ट्रॉन लूज करना यानी कि एसआरपी का, ठीक है। डीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआर। इसी के साथ साथ एक हम लोग सवाल कर लेते हैं यहाँ पे। रादर आई शुड राइट एक और पॉइंट ना जो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हेल्प करे। व्हाट वी कैन से मेटल on upper side will displace metal on lower side, है ना, ऊपर वाले मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर, ठीक है। तो हमारे पास एक सवाल है एनसीईआरटी, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। क्या ही पूछ लिया, ओ माय गॉड, नहीं करना है, डिस्प्लेस करना वर्ड आ गया ना, समझ गया आप, दे आर आस्किंग फॉर डिस्प्लेसिंग पावर, यू हैव टू अरेंज देम, ठीक है। डिस्प्लेसिंग पावर के हिसाब से अरेंज करना है, तो एसआरपी के हिसाब से अरेंज करना है, फाइन। चलिए यहाँ पे देखिए, ध्यान सुनिएगा। इन सब के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एसआरपी के हिसाब से वी विल राइट द ऑर्डर एंड देन वी आर गोइंग टू राइट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसिंग पावर। उससे पहले आपको आप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ध्यान से बताइए जरा, एल्यूमिनियम किधर है, बारात वाले में है, मतलब एल्यूमिनियम सबसे पहले बताइए, वेडिंग एलिमेंट है छापा एलिमेंट है, एल्यूमिनियम वेडिंग सर, वेडिंग एलिमेंट। वेडिंग एलिमेंट, वेडिंग में किधर है, बारात में है, ब्रश में है या फिर विदाई में, ब्रश बोलो में भाई। सर। ब्रश में एल्यूमिनियम, देखिए जरा, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सॉरी, बारात में मजे, खाना मजे से है ना, आया। राइट, ऑल ऑफ यू कैन सी दैट, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, कॉपर बताइए किधर है, छापा एलिमेंट है वेडिंग एलिमेंट, सबसे पहले बताइए, छापा और वेडिंग। ब्रश सर, वेडिंग सर। कॉपर रे भाई, छापा एलिमेंट है भाई, कॉपर तो हाइड्रोजन के जस्ट बाद छापा तो है कॉपर, ओह कॉपर, सॉरी सर, कॉपर मैंने नहीं देखा, मैंने सीआर देख लिया। नहीं नहीं, छापा है ना, कॉपर है, छापा एलिमेंट, ठीक है। तो हम छोटे में ही लिख देते छापा, जस्ट इन ऑर्डर टू लाइक जस्ट आइडेंटिफाई, ठीक है, ये छाटा छापा एलिमेंट है। व्हाट अबाउट आयरन, आयरन कौन सा एलिमेंट है अभी, बारात है छापा है, Barat. बारात एलिमेंट, बारात सॉरी, वेडिंग एलिमेंट, वेडिंग सॉरी सर, वेडिंग एलिमेंट और छापा एलिमेंट, Wedding. वेडिंग एलिमेंट, इन द वेडिंग एलिमेंट इट इज बारात एलिमेंट, ब्रश एलिमेंट, विदाई एलिमेंट, Brush. Sorry. Birth. ब्रश एलिमेंट, है ना। कोई सुन ले हम लोग को क्या पढ़ रहे हैं हम, तो पागल नहीं हो जाएगा। ये बताइए एमजी किधर है, वेडिंग एलिमेंट है छापा एलिमेंट है, Wedding. Wedding. वेडिंग वेडिंग एलिमेंट, सर। यस इट इज इन वेडिंग एलिमेंट एंड वेयर इट इज, बारात में है Barat. या बारात। बारात, ठीक है। तो दो बारात के आगे, तो वहां पे थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा कौन ऊपर है। जिंक बताइए किधर है, Wedding. Wedding. वेडिंग, इन वेडिंग वेयर इट इज, बारात में है या फिर ब्रश में, Brush. किधर है, Brushing. Brush. ब्रश में, तो ब्रश में भी थोड़ा सा एक बार हम लोग को देखना पड़ जाएगा, ठीक है। बट बहुत हद तक ठीक हो गया। आई एम गोइंग टू राइट इन टर्म्स ऑफ एसआरपी, एसआरपी सबसे ज्यादा किसका होगा, छापा वाले का, है ना, छापा का होगा ना सबसे Yes. ज्यादा, ठीक है। तो कॉपर का सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका होगा, उल्टा चले क्या, वैसे चलते, चल ठीक है, आई थिंक ऐसे आप लोग को सही रहेगा। सबसे कम किसका होगा, तो स्टार्ट करते हैं, लेके बारात काना मजे से आएगा, मजे का सबसे कम हो जाएगा, क्या ख्याल है, एसआरपी ऑफ एमजी विल बी लोएस्ट, मेक सेंस, यस सर। काना मजे से आया, देखिए सबसे कम Yes. तो इसका होगा ना, बारात वाले का सबसे कम होता है, तो अब देखना है एल्यूमिनियम और एमजी में किसका कम होगा, तो लेके बारात काना मजे से आया, तो मजे पहले आ रहा है, मजे के बाद आ रहा है एल्यूमिनियम, एलियन। ठीक है। उसके बाद ब्रश आएगा, ब्रश में कौन पहले आएगा, आयरन या जिंक, जिंक सर पहले। जिंक, मंजन कर फेंक दे, तो मंजन पहले आ गया, जेडन फेंक दे बाद में आएगा तो आयरन, उसके बाद तो बचा एक, दैट इज कॉपर। तो एसआरपी का ये है, मेक सेंस से सुनो। यस सर। डिस्प्लेसिंग पावर के लिए क्या करना है, दिस इज तो
whatever is given आप उसको अरेंज करिए। डिस्प्लेसिंग पावर के लिए सेम रहेगा बट साइन रिवर्स कर देंगे बिकॉज डिस्प्लेसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। इफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो साइन चेंज होगा, सीक्वेंस में ही रखना है आपको। Mg साइन चेंज एल्यूमिनियम, साइन चेंज जिंक, साइन चेंज Fe, साइन चेंज कॉपर। सो दिस इज द डिस्प्लेसिंग पावर का ऑर्डर। मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. छापिए छापिए छापिए। Can everyone listen to please tell me? Done, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखेंगे। थर्ड, फॉर प्रेडिक्शन ऑफ, Sir, 1 minute, can you scroll up? yeah sure, for prediction of anode and cathode, anode and cathode। Done, डन। sir. ठीक, ध्यान से देखिएगा। फॉर प्रेडिक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड, एनोड तो वो होगा जिसका यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा या रिडक्शन पोटेंशियल कम। कैथोड वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, सो वी कैन राइट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, प्लीज राइट दिस विथ मी। मेटल्स on upper side have lower SRP, है ना? Therefore SRP कम है तो एनोड हो जाएगा। Used as एनोड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मेटल्स on lower side have higher SRP, therefore used as cathode। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरी। सवाल कैसे आएगा? ठीक, सवाल तो ऐसे आता नहीं, लेकिन मेंस और नीट वगैरह में ना इस तरह से सवाल आ सकते हैं आपके पास। फ्रॉम दी फॉलोइंग पेयर्स चूज एनोड। अरे मतलब चूज ऐसे नहीं कि आपने जो मर्जी, मजा आ गया हमको, जिंक देख के बहुत अच्छा लगता है सर, जिंक मेरा कैथोड होगा, ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है ना? चूज ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी है। चूज एनोड एंड कैथोड, आपको प्रेडिक्ट करना है कि एनोड कौन सा काम करेगा और कैथोड कौन सा काम करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए जरा। नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं, आपके पास है मान लीजिए निकल एंड एजी। ठीक है, निकल एंड एजी, तो एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा? ठीक है, एनोड तो ऊपर वाले होते हैं, कैथोड नीचे वाले होते हैं ना। तो सबसे पहले तो इसी पे देख लेते हैं हम लोग। निकल वेडिंग है, ये सर नो? निकल कौन सा वेडिंग है, छापा है? निकल Wedding. वेडिंग, और एजी, Wedding. एजी वेडिंग है। छापा। सिल्वर Chapa. छापा है ना? छापा। तो छापा इज, छापा नीचे आता है, वेडिंग ऊपर। एनोड क्या हो जाएगा? निकल। जो ऊपर है वो एनोड, जो नीचे है वो कैथोड। ठीक है, तो निकल और इधर आ जाएगा एजी। ठीक है, जरूरी नहीं वेडिंग छापा में भी आपको आंसर मिल जाए। यू विल हैव टू समटाइम्स लुक फॉर दी ब्रांचेस इन द डिफरेंट वेडिंग, है ना? तो वेडिंग में सबसे ऊपर आता है बारात, उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट, उसके बाद होती है विदाई। बारात आएगी, फिर निकाह के बाद सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर विदाई होगी ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, देन वी कैन आस्क रिगार्डिंग mg and let us suppose we have pb। तो mg वेडिंग छापा, mg वेडिंग छापा, Wedding.
वेडिंग पीबी वेडिंग छापा पीबी वेडिंग और छापा वेडिंग सर। वेडिंग। लेकिन एमजी बारात वाले सेक्शन में है और पीबी विदाई वाले सेक्शन में है ना। एमजी पहले आएगा और पीबी तो बहुत बार हाइड्रोजन से जस्ट पहले। कोई नहीं गाय सुंदरी प्यार भरी वाले में पीबी आएगा तो कैथोड डी आएगा। इज दिस मेकिंग सेंस एवरीवन? यस और नो? प्लीज टेल मी। Yes, sir. यस सर। यस। सोहा आपको समझ में आ रहा है? सोहा की आवाज ही नहीं आती बिल्कुल। सोहा आ रहा समझ में? ठीक है अगला बताइए फिर आप। कौन है नोट कौन के दो ठीक है ना। हम उतना आप पे प्रेशर नहीं डालेंगे। वेडिंग बताओ छापा बताओ अगर आपको समझ में आ रही चीजें। देन टेल मी रिगार्डिंग आयरन एंड लेट अस टेक व्हाट लेते हैं एल्यूमिनियम। चलो बताओ एनोड कौन सा कैथोड कौन सा। सोहा सोहा विल टेल मी। सोहा नहीं समझ में आ रहा है सर हमको मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। यस सोहा टेल मी। नहीं हो पाएगा तो हाँ टेल मी जल्दी बताएं ना फिर हम हेल्प करेंगे ना आपकी। Anode is iron. और कैथोड इज G. व्हाट इज कैथोड? Aluminium. हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? एक second. ठीक है वही है। अब हम पूछ रहे हैं ठीक है ना। लुक एट द स्क्रीन डोंट लुक एट योर कॉपी। कैन यू डू दैट सोहा? डोंट लुक एट योर कॉपी लुक एट द स्क्रीन। आर यू विथ मी? Yes, sir. ठीक है टेल मी। वेट वेट टेल मी आयरन वेडिंग और छापा। यू रिमेंबर वेडिंग और छापा? Is wedding. वेडिंग एंड एल्यूमिनियम वेडिंग और छापा। Wedding. एल्यूमिनियम इज वेडिंग ठीक है। नाउ टेल मी आयरन इट इज इन विच पार्ट? इट इज इन बारात और इट इज इन ब्रश और इट इज इन विदाई? एपी Brush. ब्रश ठीक है। एल्यूमिनियम किधर है? बारात में है वेडिंग सॉरी बारात और ब्रश और विदाई। एल्यूमिनियम can't see aluminum in your in the list. जी चलिए रीड लेके बारात सोहा पढ़िएगा जरा। लेके बारात खाना इसीलिए ना हम ले, बोले थे सबको कि रिपीट कीजिए जी। लेके बारात ले खाना मजे से आया। यू हैव से टू आया। वर्क ऑन दिस ठीक है सोहा। ये जो लोग क्लास में नहीं बोलेंगे ना देन उनको बाद में काम करना पड़ेगा लेकिन सवाल करने के लिए तो करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम विल बी इन एनोड। आई विल नॉट Aluminum. एक्सप्लेन नाउ ठीक है ना ये चीज। हाँ ठीक है आई अंडरस्टैंड बट ये पहले ही आना चाहिए। ठीक है दैट इज वाई। चलिए ये इतना काफी है आई थिंक। इसके अलावा फिर बाकी सवाल आप लोग करिएगा खुद से ठीक है। राइट नेक्स्ट थर्ड वन। ठीक है गाइस तो थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट करें आप। जब हम बोलते हैं ना माइक ऑन करके आप लोग पढ़िए तो पढ़ना चाहिए आप लोग को। इस तरह से जो आप लोग चुपचाप बैठे रहते हैं ना इस उसी का नतीजा कि आंसर आप नहीं दे पाएंगे। चलिए यूज टू प्रिडिक्ट फीजिबिलिटी। सर ये फोर्थ वाला शायद ये। होता है अच्छा। फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन ठीक है। इसको लिख लीजिए जरा। ठीक है आई होप यू हैव रिटन टिल हियर। यूज टू नाउ यू कीप अ पेन एंड लिसन टू मी। ठीक है प्लीज कीप अ पेन एंड लिसन टू मी। Let's suppose we are having a reaction और उससे पूछा है आपको ना that whether this reaction is possible or not possible ठीक है। For A we are having copper 2 positive plus Ag is giving us copper
प्लस Ag पॉजिटिव। ठीक है, तो आई विल आस्क यू गाइस अ फ्यू थिंग्स, प्लीज डोंट राइट, ठीक है ना, आंसर करना है आप लोगों को, ठीक है, आंसर पे फोकस कीजिएगा, लेकिन जो बढ़ चढ़ के आंसर करेगा ना, इवन इफ इट इज रॉन्ग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की सिर्फ बातें हम पूछेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, उसी में बस आपको आंसर करना है। कॉपर का क्या हो रहा है बताइए जरा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। Reduction. सिल्वर, रिडक्शन, सिल्वर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन अगर हम एसआरपी की बात करें तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, कॉपर की देन एजी। डज दैट मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी। तभी तो ये रिएक्शन हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एजी कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मेक सेंस, यस और नो। Yes, sir. यस सर, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एसआरपी किसकी ज्यादा है बताइए जरा, कौन छापा, सबसे नहीं, कौन छापा, Copper. अरे छापा, सी कॉपर, 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 और के तुम बिल्कुल, हम तो बिल्कुल तुम से बेहोश कर देंगे सबको हम। CHAPA, भाई 1 2 3 पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव जितना आगे राइट साइड जाएगा तो उतना ज्यादा बड़ा होगा। ए, नंबर लाइन भूल गए क्या आप लोग, समझ में आई चीजें। सिल्वर, इट इज ऑन लोअर साइड, इट विल बी हैविंग हायर एसआरपी, दैट इज व्हाई एजी की एसआरपी किससे ज्यादा है, कॉपर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो रियलिटी है ना, ये तो सवाल है, रियलिटी। द रियलिटी इज नॉट in accordance to the reaction जो है वो reality के according नहीं है, that means we can say that this reaction is not feasible। बात समझ में आई? इससे हम लोग feasibility के बारे में क्या बोल सकते हैं, according to reaction बोल रहा है कि copper की SRP is more than Ag, but in reality Ag is more than copper, that means this is not possible, ये reaction possible ही नहीं है, तो we'll write not possible, not possible। बात समझ में आई? ये बोलो हाँ या ना। यस Yes, सर, sir. यस सर, ठीक है, the reaction will tell you certain order for SRP, this is more, this is less। Electrochemical series will also tell you about SRP. If both of them matches, that is feasible। If those things do not match, that means it is not feasible। हम reaction लिख रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज Fe प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स यू Fe2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। सबसे पहले बताओ Fe का क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद Fe? Oxidation. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। व्हाट इज हैपनिंग विद कॉपर? रिडक्शन, Reduction. रिडक्शन। एसआरपी की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, देन किसकी रिडक्शन, किसका एसआरपी ज्यादा, जो रिड्यूस हो रहा है उसकी एसआरपी ज्यादा ना, किसकी एसआरपी ज्यादा, Copper. whose एसआरपी, कॉपर इज कॉपर, ग्रेटर देन आयरन, आयरन। Iron. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, Iron is greater than copper. अरे आयरन, मार मार मर जा, मर जा। नहीं 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 सर, सी देख के बोलो भाई, देख के बोलो भाई, प्लीज भाई। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इतना पढ़ाया हमने आप लोगों को, के Yes. बारात काना मस्जिद से आया है ना, सब कुछ पढ़ाया हमने यार, ऐसा ना करें मेरे साथ प्लीज, CU is greater than Fe सर, है ना Copper is मरियम? greater than. कॉप, थैंक यू वेरी मच। कॉपर इज ग्रेटर देन एफ, तो फीजिबल नॉट फीजिबल क्या होगा बताओ? feasible Not सर, feasible. Feasible. फीजिबल नॉट फीजिबल, मरियम को तो बिल्कुल तुम ऐसा टिकट करा लेंगे हम, मरियम बता रहे हैं आपको हम, आके डांटेंगे आपको इन पर्सन, ठीक है। देखिए इधर जिंक 2 पॉजिटिव प्लस लेड गिविंग यू Pv2 पॉजिटिव प्लस जिंक। चलो बताओ फीजिबल नॉट फीजिबल, और हमने कुछ बोलेंगे, फीजिबल नॉट फीजिबल बताना आप। लुक एट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यू हैव द नोटबुक्स विथ यू राइट नाउ, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया हाथ रेज करेंगे प्लीज, एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड प्लीज लेट मी नो। कोई नहीं बोलेगा भाई कोई नहीं बोलेगा। अरे बोलिए भाई, समझा देंगे हम, ऐसे मजाक करते हैं ये सब, ठीक है, समझा देंगे। बताइए बताइए जल्दी बताइए, एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड? कोई गलती से भी नहीं, अरे नहीं नहीं हम सच में, अब बोलिए तो अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। चलिए आंसर समझ में आएगा, जिसका सही आंसर उनको समझ में आया, जिनका सही आंसर नहीं आया उनको नहीं समझ में आया। फीजिबल नॉट फीजिबल बताना है आपको। हाँ ऐसा सन्नाटा है, बताओ, डरा दिया हमने बच्चों को।
ठीक है, मरियम का आंसर आया। ओके, आने दीजिए, आंसर आने दीजिए, थोड़ा सस्पेंस तो बने, सही है गलत है, सस्पेंस बने थोड़ा, कुछ तो प्रेशर आया आप लोगों पे। अगर जो आप लोगों ने काम नहीं किया होगा ना, हम इतना पढ़ाने के बाद भी लिखते हैं ऑक्सीडेशन, लिखते हैं रिडक्शन, देन आई राइट एसआरपी इसका ज्यादा इसका कम अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, देन आई राइट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आपने बस ऐसी इसका ज्यादा इसका कम, ये रिडक्ट ये रिड्यूस ये ऐसे करके किया ना, अगर आपने, you have to do the work. If you are not doing the work, then it is going to be wrong. भले ही अभी सही हो जाए, बट आफ्टर फ्यू डेज फिर नहीं याद रहेगा आपको ये सारी चीजें। यू शुड रिमेंबर द वर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 321 मल्टीप्लाइड बाई 468, नो वन, किसी को वैल्यू नहीं पता अभी, आप में से किसी को इसकी वैल्यू नहीं पता है, बट यू नो हाउ टू डू इट, दैट इज, यू नो हाउ टू डू इट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उसी तरह आपको पता होना चाहिए करना कैसे। अगर जो किसी ने ना ऐसे उल्टा सीधा किया होगा ना, फिर तो हम बताएंगे आपको। क्या नहीं भेजा आंसर? भैया, भैया ने सारा काम किया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन सब कुछ किया। भेजिए जरा हमको व्हाट्सएप में भेजिए ना, आई वांट टू सी दी आंसर्स। अन्नपूर्णा हैज आंसर्ड, मरियम हैज आंसर्ड एंड हर्षा हैज आंसर्ड। भेजिए जरा आंसर, जरा भेजिए भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए। बाकी लोगों को तो नहीं आ रहा होगा, कुछ नहीं है ना, समझ में आ गया आपको, आंसर नहीं आ रहा तो कहाँ से आएगा? यू नीड टू बी अटेंटिव इन द क्लास, यू नीड टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, अदरवाइज नहीं आएंगी चीजें, ठीक है? दूसरों के आंसर सुनते रह जाइएगा बस आप लोग। Soha, did you understand? Yes. तो आंसर क्यों नहीं आया अभी तक? समझ आपको सब आता है, आंसर नहीं आता है। एक और यहाँ पे एक लड़की है, बिल्कुल शांत हो गई है ऐसे, नुहा, 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 एम आई ऑडिबल? कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? Yes, sir. कहाँ है आप? हाँ नुहा कहाँ है? एक आवाज नहीं आती आपकी आजकल। हाँ नुहा, क्लास में हूँ सर। क्या? हाँ बहुत बढ़िया, व्हाट आर जो क्लास में आवाज नहीं आती, कुछ नहीं आंसर कर रहे हैं आप आजकल, क्या हो गया है? बातें नहीं समझ में आ रही है, 12 बहुत हार्ड लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा। दिस नहीं इज समझ, वेट वेट, व्हाट दिस इज? दिस इज न्यू, लाइक द you made us memorize, right, wedding elements and chapa elements, so it's confusing. व्हाई इट इज कंफ्यूजिंग? आप पार्टिसिपेट तो करें ना, आपने कभी भी कुछ नहीं बोला कभी आप ये तो। अच्छा ये बताइए, जिंक का क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग विद जिंक? टेल मी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। Reduction, पीवी का क्या हो रहा है? oxidation, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन के हिसाब से बात करें, ठीक है, रिएक्शन के हिसाब से तो कौन रिड्यूस हो रहा है? पी, ऑक्सीडेशन, हाँ ठीक है। कौन रिड्यूस हो रहा है? जिंक, है ना? lead, नहीं नहीं, जिंक रिड्यूस हो रहा है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ये रिडक्शन Yes. के पहले इधर ऐसे है, ठीक है? अब ठीक है। yes sir, हाँ, जिंक इज गेटिंग रिड्यूस, तो जिंक का एसआरपी ज्यादा होगा देन पीवी, मेक सेंस? yes sir, ठीक है, अब बताइए, नंबर सीरीज देखा आपने? ऐसे होता है ना, यहाँ पे आपके पास लिथियम है, उसके बाद इधर हाइड्रोजन आएगा 0, उसके बाद इधर आएगा छापा एलिमेंट्स, मेक सेंस? सही है? yes sir, तो अब बताइए, लिथियम है लेके पोटेशियम है, तो लिथियम का ज्यादा है एसआरपी या पोटेशियम का? किसका एसआरपी ज्यादा है? व्हाट डू यू थिंक?
लिथियम एसआरपी इज मोर और पोटेशियम किसका ज्यादा एसआरपी? पोटेशियम। पक्का है ना? पोटेशियम का ज्यादा है बिकॉज इट इज लेस नेगेटिव है ना। पोटेशियम के बाद क्या है, लेके 12, बेरियम का और कम। उस हिसाब से बताइए, टेल मी, इज दिस द ऑर्डर फॉर एसआरपी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इफ आई सी, इसका ये मतलब जो है ना, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि जिंक जो है ना उसको बाद में आना चाहिए, पीबी को पहले आना चाहिए। ये तो मतलब हुआ ना, जो ज्यादा है वो लेट बाद में आता है। क्या ख्याल है, ऐसे ही ना? यस सर। तो बता देगा पीबी जिंक। तो जिंक बाद में आएगा, तो जिंक बाद में आता है क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, पीबी से? या पीबी से पहले आता है? पीवी से पहले। ठीक है, तो पीबी से पहले आता है, तो यानी कि पीबी का ज्यादा है जिंक से। मेक सेंस? यस सर। है ना? यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें, यहाँ पे अगर 0 है तो आपके पास जिंक होगा यहाँ पे और पीबी होगा यहाँ पे, तो पीबी इज मोर। नाउ बोथ ऑफ दीज थिंग्स डू नॉट मेक सेंस ना। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन जिंक का ज्यादा है, लेकिन हमारे रियलिटी के हिसाब से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से, लेड का ज्यादा होना चाहिए। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। क्या ख्याल है? यस सर। समझ में आया? यस। अब आपने सी देखिए, हमने आपको कुछ नहीं बताया, यू ओनली आंसर्ड थिंग्स ना। यस और नो? नो, हाँ। यस सर। whatever question I have asked you, you can ask those question yourself. आप खुद को भी पूछ सकते हैं, करेक्ट? यस। सो व्हाई विल यू नॉट अंडरस्टैंड? क्या कुछ कंफ्यूजिंग था यहाँ पे? वही हम कह रहे हैं, कैन यू सी द डिफरेंस नो व्हेन यू डोंट स्पीक एंड व्हेन यू स्पीक, हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स? जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, प्लीज इस चीज को पकड़ लीजिए, दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ओनली बिकॉज यू आर नॉट स्पीकिंग। इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग, इफ यू स्टार्ट आंसरिंग थिंग्स, आप रोक दीजिए ना हमको। हम नहीं रुकेंगे ऐसे, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये नोहा को बस हमने एज एन एग्जांपल यहाँ पे दिखाया। इस क्लास के बाद अगर नोहा ने और नहीं बोला तो ना बार बार नोहा को ऐसे पकड़ पकड़ के समझाएंगे। वो आपको रोकना है कि सर एक बार एक सवाल मेरे से करा लीजिए प्लीज। आपको रोकना है कि सर एक सवाल मेरे से करा लीजिए, तब आपको समझ में आएंगी ना चीजें। ठीक है, हम 12 इस चीज को बोलते हैं इन माई क्लास यू विल हैव टू स्पीक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत माजरत के साथ, ठीक है, लाइक एक्सट्रीमली सॉरी। हर पेशेंट के लिए हर डॉक्टर सुटेबल नहीं होता, हर स्टूडेंट के लिए हर टीचर सुटेबल नहीं है। ठीक है, you can have a very famous doctor but he cannot treat a very small ailment also ना। बहुत छोटी सी चीज भी हो ना, कभी कभी बड़ा बड़ा डॉक्टर नहीं पकड़ा। ठीक है, तो इसमें हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर कोई बच्चा ये कहे कि लाइक सालिम सर इज नॉट सुटेबल। ठीक है, आई आई नो अ लॉट ऑफ टीचर हु आर लाइक बहुत बढ़िया टीचर। ठीक है, they have produced very good numbers in terms of their students marks, but लेकिन कुछ बच्चों को उनसे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो if you have to be in my class you need to speak। अगर आप नहीं बोलेंगे, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर आपके मार्क्स कम आएंगे, तो वो चीज हम नहीं चाहते। ठीक है, तो इफ यू डोंट हैव टेंडेंसी टू स्पीक, वो ट्राई करें आप बिल्डअप करने की। ठीक है, चलिए, तो आंसर मिल गया आप लोगों को। अन्ना एंड हर्षा, हर्षा कैसे गलत हुआ, अन्ना कैसे गलत हुआ? यस सर। हर्षा? हाँ, ध्यान देना है बस, ठीक है ना? ध्यान से कीजिएगा चीजों को। चीजें देखिए, पहले तो समझ में आने की चीजें हैं, उसके बाद धीरे धीरे ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक इवन इफ यू अंडरस्टैंड। मरियम का सरप्राइजिंगली सही हो गया। मरियम, हाँ, ये यस। डबल मिस्टेक करके आपने सही किया है। एक तो होता है ना कि आई मतलब यू अंडरस्टूड। ठीक है, एक बार एक बच्चे का ना ऐसे गलत हुआ था, पता है? उसने दोनों गलत कर दिया। उसने अकॉर्डिंग टू रिएक्शन उसको लगा कि जैसे पीबी रिड्यूस हो रहा है, तो उसने लिख दिया पीबी इज ग्रेटर देन जिंक, है ना? और उसने ये लिख दिया। ठीक है, ये तो गलत लिख दिया उसने।